Hello, 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 hello. Could you able to hear me? Good afternoon. Good afternoon. Hello. Could you able to hear me? Good afternoon. Yes, please. There are 4 members present altogether. Thank you very much for coming to this class. Now let's go ahead with this Sale of Goods Act. We are in the first part of Sale of Goods Act and the formulation of goods. Formation of sale of goods is very, very important. When you take the content, this is how we can see upon the content of your formation. The recording is on. The formulation of goods of. This is how we can definition. When you see the definition of this thing, a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers and agrees to transfer the property of goods and the buyer to this for a price. So there should be a price for exactly for a price. A contract of sale of goods is a contractual, whereas by the seller transfers agrees to sell the property of goods. Okay, that's how this can be registered, and this how the transfer of goods of property can be sold. So likewise, when you see the seller transferring and agreeing and transferring the property, the goods or property of the price. So there should be a price, and thereupon then the seller can sell the goods. So essentials of contract of sale. What are the essentials of contract of sale is nothing but from the above definition, following essentials of the contract of sale may be noted. So kindly note down these two parts. There should be two parties at least. That's everyone knows. Once you need to have two parties. Purchase and transfer of agreement to transfer the ownership of the goods. Okay, ownership of the goods will be transferring to this agreement. The subject matter is also contract must be necessary to the goods. So there should be a subject matter. A contract must necessarily be goods, and the sale of immovable property is not conveyed under this act. So the consideration of price, first thing. Next important thing is consideration of price. Unless there is a consideration of price, ప్రైజ్ యొక్క నిర్ధారణకు వస్తే తప్ప సేల్ విల్ నాట్ బి కన్సిడరేషన్. అంటే దాంట్లో ఒక ప్రైజ్ ఉండాలి. సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే ఒక గూడ్స్ మనం ఇచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించి మనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ బి డన్ ఫర్ ది సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. Suppose you take all the goods now, what are the amount, mode of transfer of amount can be in a different forms, and this can be transferred in wonderful ways. Consideration of price is very, very essential, and the contract may be in written or by words. So this can be in written or by words. You can write them or you can listen them, and this is how it can go. Next important. See the definition now. Could you able to see this thing? Okay. Could you able to see the screen clearly? Once you see the screen, then I can go ahead with this other part of my class. So I think you can example. The examples of goodwill, common right, trademark, patent, and all these things come under this thing. Let's have a small video
on this Sale of Goods Act. I think you would be able to share the screen now. This is a wonderful video. Last class continuation of foundation course key. We'll have this video for a small part of the class now. So let's listen to the person telling to this class for us. Sorry, Babu, screen में पड़ा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन। आज एक टॉपिक जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इस टॉपिक की डिमांड काफी दिनों से आप लोगों की तरफ से आ रही थी। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि सेल ऑफ गुड्स किस बारे में बात करता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ओरिजिनली ये पूरा का पूरा जो एक्ट है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा था। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेर एक्ट को देखेंगे ना, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेर एक्ट में सेक्शन 75 के बाद कोई सेक्शन ही नहीं है। कहां तक नहीं है? 124 सेक्शन से पहले, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वाला पार्ट जहां से शुरू होता है ना, वहां से पहले, और 75 के बाद कोई सेक्शन नहीं है। रीजन, क्योंकि वो पार्ट था सेल ऑफ गुड्स का, जो ओरिजिनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ही था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही था। लेकिन 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग करके एक अलग से एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसी के साथ साथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को भी ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग करके 1932 में अलग से एक एक्ट बना दिया गया था। अब ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो 1 जुलाई 1930 को आया था, ये एक्ट बेसिकली किन चीजों की बात करता है? देखिए, मैं आपको दो एग्जांपल्स दे रहा हूं। इफ आई टॉक अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करूं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो इंडिया में एक्ट है उसका नाम है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। लेकिन अगर मैं बात करूं मूवेबल प्रॉपर्टी की, अगर मैं बात करूं मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसके लिए जो एक्ट है उसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दैट मीन्स दिस एक्ट डील्स विथ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। ये एक्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब जरा बात करते हैं कि गुड्स की डेफिनेशन में किन चीजों को इंक्लूड किया गया है और किन चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं दी है। जो डेफिनेशन है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में 3 चीजों को एक्सक्लूड करना है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है? वो 3 चीजें जो मैं बात कर रहा हूं वो है ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रास। इन 3 चीजों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने अपने में से एक्सक्लूड किया। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ये 3 चीजें नहीं आती। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब फसल, स्टैंडिंग टिम्बर का पेड़ होता है और उसकी लकड़ी की यहां ये बात कर रहा है, और तीसरी ग्रास, क्योंकि इन 3 चीजों को ना हम जमीन से अलग कर सकते हैं। और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर इन दोनों की हम कलेक्टिव स्टडी करें तो एक कंक्लूजन जो सामने आता है वो कंक्लूजन ये है, एनीथिंग विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थ, जिसे अर्थ से हम सेपरेट कर सकें और उसे सेपरेट करके यूज कर सकें, उसे हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी कैटेगरी में रखा जाए, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। तो सबसे पहले हमने गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड किया ग्रोइंग क्रॉप्स को, जिसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सक्लूड करता है।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सक्लूड करता है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंक्लूड करता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास। ओल्ड करेंसी को भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। यहां ये पॉइंट देखना इंटरेस्टिंग है कि मनी और करेंसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन ओल्ड करेंसी को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि सर अब ओल्ड करेंसी चलती ही नहीं है। अब ओल्ड करेंसी को तो लोग खरीदते हैं, पुराने नोट, पुराने सिक्के, उसके लिए लोग बहुत ज्यादा प्राइस ऑफर करते हैं। जिन लोगों को उसका कलेक्शन करने का शौक होता है, जिनकी हॉबी होती है इन चीजों को कलेक्ट करना। लेकिन अगर आप ओल्ड करेंसी या ओल्ड कॉइन लेके जाएंगे तो उसके बदले में यू कैन नॉट बाय गुड्स, उसके बदले में आप गुड्स परचेज नहीं कर सकते। इसलिए ओल्ड करेंसी को गुड्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, यस इंटरेस्टिंग है। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी को भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सबको भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। शेयर्स का भी आफ्टर अलॉटमेंट इट बिकम्स गुड्स। और कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन 44 भी तो है, जो सेक्शन 44 कहता है कि कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स क्या होंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। तो शेयर्स को, स्टॉक को, गुडविल को, पेटेंट को, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब को इंक्लूड किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, यानी कि इसे गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो जब भी हम ये पूरा एक्ट पढ़ेंगे तो पूरे एक्ट में ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि इन सबको गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करना है। अब बात करते हैं किन चीजों को एक्सक्लूड किया गया है, तो यहां जरा देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा मनी करेंसी, क्योंकि इसका यूज तो गुड्स को परचेज करने के लिए किया जाता है। मनी का यूज गुड्स को परचेज करने के लिए किया जाता है, इसलिए मनी को हम गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। दूसरी बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं आती गुड्स की डेफिनेशन में एज पर दिस एक्ट। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है सर? एक्शनेबल क्लेम, कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम बेसिकली मींस एन अनसिक्योर्ड डेब्ट। तो अनसिक्योर्ड डेब्ट को ही हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन किसी बैंक से कोई लोन ले रहा है और बैंक से लोन लेने के लिए वो अपनी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल गोल्ड को प्लेज कर रहा है, तो अगर वो गोल्ड को प्लेज कर रहा है एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम हिज साइड, बैंक क्या करेगा? बैंक उस गोल्ड को सेल कर देगा और बैंक उस गोल्ड को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। जैसा कि ऐसा काम बहुत सारी एनबीएफसीज करती हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस। आपने गोल्ड को प्लेज किया और गोल्ड को प्लेज करके गोल्ड पे लोन ले लिया, एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, मान लीजिए अगर डिफॉल्ट हो गया तो मुथूट फाइनेंस क्या करेगा? उस गोल्ड को सेल करेगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को पैसा दिया है और बदले में आपने उसे एक पोस्ट डेटेड चेक दिया है, आपके फ्रेंड ने आपको बदले में एक पोस्ट डेटेड चेक दिया है। नाउ इन केस ऑफ वो चेक अगर डिसऑनर हो जाए, अगर वो चेक क्लियर ना हो, उससे पैसा ना मिले, तो क्या अब आप उसकी किसी प्रॉपर्टी को फोरफिट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आप उसकी किसी प्रॉपर्टी को फोरफिट नहीं कर सकते, लेकिन यस, आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो यहां जो आपका डेब्ट है वो डेब्ट सिक्योर्ड नहीं है किसी एसेट के ऊपर, इसलिए उस डेब्ट को हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड डेब्ट। और अनसिक्योर्ड डेब्ट का ही दूसरा नाम क्या है? एक्शनेबल क्लेम। एक ऐसा क्लेम जिसके लिए वी कैन टेक एनी एक्शन। एक्शन कहां लेंगे? कोर्ट में लेंगे। उसके लिए क्या फाइल करेंगे? उसके लिए यू कैन फाइल ए केस। तो एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं ना, एक्शनेबल क्लेम का असाइनमेंट पॉसिबल है। इन डेब्ट्स को असाइन किया जा सकता है। असाइनमेंट में दो पार्टीज होती हैं, वन इज असाइनर एंड द अदर वन इज असाइनी। वन इज असाइनर एंड द अदर वन इज असाइनी। असाइनर वो जो कि अपने किसी राइट को असाइन करता है इन फेवर ऑफ द असाइनी।
सो आई रियली होप कि आपको इस बेसिक से क्लियर हो चुका होगा, इस बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गुड्स की डेफिनेशन में किसे इंक्लूड करना है और किसे एक्सक्लूड करना है। एंड आई रियली होप कि आपको क्लियर हो गया कि एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग क्या होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। Now we had a wonderful class on sale of goods act. These notes will be forwarded to you, and once we have these notes, you can go through the examination, and these are the part of section 4, unit 4 of business law. So thank you very much. There are 3 members present altogether. Thank you very much for your patient listening to this class.